ہم لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش جب پاکستان جب ٹوٹا تھا تو ایسے حالات نہیں تھے. ہمیں بنگلہ دیش ملک ٹوٹنے کا ذرا بھی افسوس نہیں ہوا. وہ بھی ایک جماعت کو پیچھے رکھنے کے لیے تھا. آج کے حالات ہیں. کیا یہ طاقتور لوگ اپنی من مانی کر پائیں گے؟ کیونکہ پلانٹری کنڈیشن اب بڑے لیول کے اوپر چینج آنے والا ہے. اس سال 3 بڑے ایونٹ اپریل، جنوری اور میجر ایونٹ اکتوبر، راہو اور کیتو کا یہاں کر دے گا سب کا وقت. راہو کال ہے، وہ کال کو بدل دے گا، یعنی وقت کو بدل دے گا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمیم. خوش آمدید سیاست اور نجوم کے اوپر. آج پھر ہم بات کریں گے جو پاکستان میں اس وقت حالات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، اور نیا سال 2023 پاکستان کے لیے کیسا رہے گا، کیا ہوپ ہے، کیا مہنگائی میں کمی آ سکتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. کیا فوڈ کرائسس بڑھ جائے گا، کیا پاکستان میں کوئی اسٹیبلٹی نام کی چیز آئے گی یا نہیں، اور موجودہ صورتحال کیا الیکشنز ہو پائیں گے یا نہیں. کیونکہ ابھی تک تو جو باتیں تھیں، میں نے کہا تھا کہ اب میجر ایونٹ 13 جنوری اور 17 جنوری کو ہوں گے، تو چاہے وہ کورٹ کی طرف سے ہیں یا کوئی سے وہاں سے، وہ سب آہستہ آہستہ ادھر ہی جاتے جا رہے ہیں، ڈیٹ کے قریب آتے جا رہے ہیں. اور باجوہ صاحب نے کہا کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کے دور میں جو کچھ اچھا ہوا وہ انہی کی بدولت تھا. یعنی کہ پاکستان اچھا چل رہا تھا یا جو بھی تھا وہ انہی کے وجہ سے تھا. یعنی اس وقت پاکستان میں کوئی ڈکیتی پڑی یا ڈاکہ پڑا یا کوئی ریپ ہوا تو اس میں بھی باجوہ صاحب کا ہی ہاتھ تھا. اس کا مطلب ایک ایسی گمنامی کی زندگی ہے جو وہ صحافیوں کو گھر بلا کے انٹرویو دیتے ہیں. اب جس صحافی کو گھر بلا کے انٹرویو دیا ہوگا تو کیا بات ہی ہوگی، اور کیا باجوہ صاحب کے آگے آنے والے حالات کیا ہیں. جو پاکستان میں اس وقت حالات ہیں، سیم حالات 70 اور 71 میں بھی اسی طرح تھے، سیم ڈیٹو. اس وقت ہمیں ہوش نہیں تو ہم تھے بھی نہیں. اب ان حالات کی اگر ہم بات کریں تو سیم ایسے ہی حالات تھے، اور ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے جو ہمیں جھوٹی سچی من گھڑت کہانیاں سنائیں وہ یقین کر لیتے تھے ہم. وہ 65 میں جو جنگ ہوئی تھی، پھر 71 میں ہم ملک ہی توڑ بیٹھے. تو اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود ہم ملک توڑ بیٹھے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. وہاں پہ بھی ایک پرابلم تھی کہ ایک بندے کو حکومت نہیں دینی تھی جو کہ اکثریت میں آیا ہوا تھا. کون تھا یہ؟ اور وہی حالات اس وقت تو ہمیں نہیں پتا. ایسی جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں جو 65 میں جب جنگ ہو رہی تھی تو ہمارے جو جتنے بھی پیر اور بزرگ تھے وہ آتے تھے اور وہ بم کو کیچ کر لیا کرتے تھے. 71 میں وہ بابا جی کیا بنگلہ دیش چلے گئے تھے؟ یہی کسی بھی قوم کا زوال اس کی تاریخ کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اس کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہوتی ہے. آج پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے. کیا یہ پاکستان چاہیے تھا؟ اگر ہم اس وقت کی پلانٹری کنڈیشن دیکھیں تو ٹورس میں سیٹرن بیٹھا ہوا تھا اور بالکل اپوزٹ جوپیٹر بیٹھا ہوا تھا. راہو کیتو کینسر اور کیپریکارن میں تھے. کینسر جو ہے گھر ہوتا ہے وہ ٹوٹا، اور کہا جاتا ہے کہ 71 میں بھی ایسے حالات نہیں تھے جو آج فائنینشلی حالات ہیں. اس وقت کی ہر پلانٹری کنڈیشن کچھ ڈیفرنٹ تھی اور کچھ پلانٹری کنڈیشن ہی کچھ اور تھی. لیکن یہ کیسی قوم تھی کہ ملک ٹوٹ گیا سو کچھ ہوا ہی نہیں. کیسی قوم تھی. اور آج جو پلانٹری کنڈیشنز ہیں، کیا پاکستان میں 2023 کہیں سے بھی اچھا نہیں، کہیں سے بھی کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی. کیونکہ جوپیٹر بہت امپورٹنٹ پلانٹ ہوتا ہے. اگر جہاں آپ کو پتا ہوگا کہ اسینڈنٹ میں جس ٹائم آپ پیدا ہوتے ہیں اس کو اسینڈنٹ کہا جاتا ہے، اور جہاں مون سائن ہو
वहाँ मून साइन कहा जाता है, और ज़्यादातर आप तो लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा समझते हैं कि जहाँ सन होगा आपका वो आपका साइन होगा। इसी तरह मेन इम्पॉर्टेंट ज़ोडिक साइन जुपिटर बनता है एसेंडेंट। जुपिटर जहाँ होगा वो भी आपका एक एसेंडेंट है, क्योंकि जुपिटर को नफ्स कहा जाता है। अभी जुपिटर पाइसिस में है, अपने घर में है, महंगाई में कुछ भी कमी नहीं आने वाली, बल्कि महंगाई और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी, और उसमें फूड क्राइसिस भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। हाँ, ये मैं आपको गारंटी ज़रूर दे देता हूँ कि पाकिस्तान में जो 75 सालों से हो रहा है वो बहुत तेज़ी के साथ उसका ज़वाल आपको नज़र आएगा। जो अपने आप को ताकतवर समझते थे वो हालात इस तरफ चले जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो अपनी ताकतों से किस तरह महरूम हो रहे हैं। यहाँ जो प्लैनेटरी कंडीशन है, कोई राज ऐसा नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं, कोई महकमा ऐसा नहीं होगा, कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो बेनकाब नहीं होगा। हर बंदा बेनकाब होगा। यहाँ पर हर चीज़ आपके सामने खुल के बाहर आएगी, और बेहिसी का आलम हम देख लें, आवाम हम अपने आप को देख लें, इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, कोई फीलिंग नहीं आ रही, कुछ भी नहीं, हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। यहाँ बाजवा साहब, मैंने जैसे कहा था कि कुछ मीडिया की पर्सनैलिटीज, बड़ी पर्सनैलिटीज, और कुछ बड़े लोगों को हिसाब किताब का साल भी है, क्योंकि मरकरी इस साल का बादशाह है जो शुरू होगा अप्रैल से, और वीनस वजीर। यहाँ पर इस निज़ाम जो 75 सालों से पाकिस्तान के बनने पर सवालिया निशान लगा देता है कि पाकिस्तान इसलिए बना था कि यहाँ जो तमाम नबी की कौमों में बुराइयां थी वो इस कौम में एक है। तो आने वाला जो वक्त है, और वक्त बड़ा ही जालिम है, इसने नहीं छोड़ना किसी को भी। और जो प्लैनेटरी कंडीशंस बन रही है, क्योंकि पाकिस्तान का जुपिटर राहु में आएगा, यानी कि एरियस में जब जुपिटर आएगा अप्रैल के महीने में, और सबसे बड़ा इवेंट तो यही अपना 17 जनवरी के बाद सैटर्न जब इधर आएगा, बड़ी मेजर इवेंट्स होंगे 17 जनवरी के बाद, और बहुत बड़े इवेंट होंगे जब जुपिटर हाउस करेगा 22 अप्रैल के बाद, और फिर सबसे खतरनाक इवेंट होगा जब अक्टूबर में राहु केतु आएंगे। तो यहाँ पर ये निज़ाम और ये ताकतवर लोगों के लिए एक बहुत कड़ा मुश्किल, पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत मुश्किल वक्त होगा। यहाँ पाकिस्तान के 71 जैसे हालात बनते हुए आपको फिर दिखेंगे, और उसके गुनहगार भी सामने आएंगे। यहाँ चीज़ें क्योंकि बड़े लेवल के ऊपर, यहाँ जिन्हें हुकूमत या निगरान हुकूमत बनाना थी वो खुद इस काबिल ही नहीं है। यहाँ पर अब एक शख्स के लिए ये पूरा निज़ाम इकट्ठा हो गया, उस शख्स से लड़ने के लिए। अब स्कॉर्पियो है दिशा, स्कॉर्पियो हिडन चीज़ों का, हिडन चीज़ें बाहर आ रही हैं, चाहे वो ऑडियो के सूरत में आ रही है या वीडियो के सूरत में। अभी तो कुछ इदारों की वीडियो आएंगी सामने, किस तरह पाकिस्तान को लूटा गया, किस तरह पाकिस्तान को खाया गया। राहु केतु ने ऐसे ऐसे राज देखने को मिलेंगे जो इससे पहले कभी आपने सोचा भी नहीं था। यहां सेम वही हालात हैं। यहां ताकतवर लोग जो अपने आप को समझते थे, उनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत 17 जनवरी से शुरू हो जाएगी, और 17 जनवरी के बाद से अब देख लें, जब प्लैनेट कंडीशंस चेंज करते हैं तभी सारी चीज़ें मूव होती हैं। उससे पहले आपने देख लें कि कब से हो रहा था कि हुकूमत तोड़ देंगे पंजाब की, वही आगे डेट 13 और 17। जब आप किसी के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं तो आपको
डिटेल बतानी पड़ती है भी ये फलां कंडीशंस है, फलां चार्ट के अंदर ये कंडीशन है, ये चीज़ है, इसकी बेस के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं हवा में बात कर दूं कि जी ये देखें जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, तो उसके पीछे बेस नहीं है। क्योंकि 2023 अगर कहा जाए अप्रैल के बाद औरतों का साल है, फाशी का साल है, तो इसमें कोई शक नहीं है। औरतों यहां बहुत ज्यादा पावरफुल होंगी, फैशन इंडस्ट्री बहुत ऊपर जाएगी, और सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा होगा। ऐसे ऐसे हालात आ जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें आ जाएंगी कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई चीज रिकॉर्ड नहीं है, हम यहाँ से उठ के चले गए, कोई ऐसी डिवाइस आएगी जो यहाँ पे बैठे गुफ्तगू हुई थी या वीडियो थी, सब क्लियर हो जाएगी, चाहे कोई कैमरा है या नहीं है। इस किस्म की डिवाइस भी आ जाएंगी दुनिया में, जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगी। मुश्किल हो जाएगा गुनाह को छुपाना। ऐसे ऐसे जदीद किस्म के टेक्नोलॉजी चीजें आ जाएंगी। और पाकिस्तान में कोई भी जमात ऐसी नहीं है जो 13 जमातें हैं, ये मिलकर भी जो हुकूमत भी बना सकती हैं, और जितनी सीटें चाहिए होती हैं वो नहीं कर सकती। तो यहाँ कुछ सोचना पड़ेगा। इलेक्शन जब तक होते हुए नजर नहीं आएंगे, जब तक पब्लिक बाहर नहीं आएगी, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। हाँ, पब्लिक में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि 8वें घर में आने वाला पब्लिक से 8वें घर में, तो यहाँ बड़े लेवल का बदलाव देखने को मिलेगा। पाकिस्तान का जुपिटर जो है वो जन्म के जुपिटर से ऑपोजिशन में होगा, यानी कि जो गलतियां की हुई हैं आपको 13 से लेकर 13 फरवरी तक आपको नजर आ जाएगा। बहुत से फैसले आप रविश देखेंगे, बहुत से फैसले बदलते हुए देखेंगे, और बहुत सी चीज़ें आप होती हुई देखेंगे, क्योंकि ये एक प्रेशर के साथ होगा। हाँ, यहाँ बड़ी पर्सनैलिटीज़ का और सिंध से वक्त 17 जनवरी के बाद से शुरू हो रहा है, और चीज़ें बहुत बड़े लेवल के ऊपर यहाँ टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट, और ये जो चल रहा है ना कि जी हम टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट लें और 2 साल के लिए बना दें, पॉसिबल ही नहीं। 2024 तक चीजें जो हैं हम इसी तरह टेंशन में हैं। जब स्कॉर्पियो की दिशा चेंज होगी तभी कोई बड़ी चीजें चेंज आएगी। उससे पहले इस निजाम को ऐसा नंगा करके जाएगा, ऐसा नंगा करके जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे दें इजाजत, इसको जारी रखेंगे, बड़ा लंबा टॉपिक है, इसको डिटेल से बात करेंगे चार्ट के थ्रू, बांग्लादेश के चार्ट के थ्रू भी, मौजूदा प्लानिटरी कंडीशन के चार्ट के थ्रू भी, और बाकी जो हमारे सरबराह उनकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके थ्रू भी देखेंगे, और पाकिस्तान के चार्ट से देखेंगे कि क्या चीज़ आगे पॉसिबिलिटी है, और पाकिस्तान और चाइना के हालात क्या फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेंगे जो आज हैं, और क्या अमेरिका के साथ फिर लड़ाई शुरू होने वाली है पाकिस्तान की नाराज़गी। इसके ऊपर बात करेंगे अगले वीडियो पे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह।